Hello student, welcome to my video tutorial of class 8th. Yes student, you know we already discussed about computer fundamental in my previous video. Okay, for today's video I also share this PowerPoint presentation and PDF file in your group. Okay, so you can refer to understand for better understand this video also for use or to use that PowerPoint or PDF slide. Okay, so let's get started with computer fundamental. Now here it says about the computer. The computer is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user, okay, and process these data under the control of set of instruction. Means हमसे कंप्यूटर क्या लेता है, एक इंस्ट्रक्शन लेता है, एक इनपुट हमसे लेता है और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड गिव्स द रिजल्ट एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूजेस. ओके, तो और क्या करता है, हमें और एक आउटपुट देता है और उस आउटपुट को सेव भी करता है फॉर फ्यूचर यूज. It can process both numerical and non-numerical calculation. Okay, students. So there are the four components which comes in processing of information. The first is accept data. It is called input. Process data. It is called processing. Produce output. It is called output. And store result is called storage. Okay. So what is input? Input is a raw information entered into a computer and the input device. From the input device, it is the collection of letters, numbers, images, etc. Okay, this is called input. So we give input to the computer with the help of input devices like mouse and keyboard. Second one is process. The process is the operation of data as per given instruction. Okay, it is totally internal process of the computer and this process happen with the help of processor. Okay, now the next one is output. Output is a proceeded data given by computer. Okay, after processing, computer generate one output and it is given by the output device. Output is also called as result. We can save this result in the storage device for the future use. Okay, now computer system. All of the components of the computer system can be summarized with a simple equation. It means the component which comes together for to work any job, to work any calculation is called computer system. Now we can say the computer system is equal to hardware plus software and plus users. Okay, so hardware is equal to internal प्लस पेरिफेरल डिवाइसेस. हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जितने भी हमारे इंटरनल डिवाइस होते हैं या फिर हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उनको बोलते हैं क्या, हार्डवेयर. ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और एवरीथिंग दैट वी कैन टच एज नोन एज हार्डवेयर. See, okay, let's talk about software. What is software? Software is a computer program, nothing else. Computer program. Okay, software gives intelligence to the computer. Now next one is user. Who are the users here? Us. We are the users who use computer, like person who operate computer. This is about computer fundamental. Okay, so let's see the next slide. In this we are going to discuss about input devices. Okay, so first input device here you can see mouse, second is keyboard, third one is scanner, fourth one is digital camera, web camera, joystick, trackball, touchpad screen, light pen, barcode reader, microphone and graphics table. These are the input device. Okay, let's move to the next input devices. Magnetic ink character reader, MICR. Second one is optical mark reader, OMR. Okay, reader. Next one is magnetic card reader, MCR, magnetic card reader. Next one is biometric device, Bluetooth devices. These are the input devices. Okay, so let's say the processor, the main unit inside the computer is the CPU. Okay, it is also called a brain of a computer. Okay, so it is a main unit. This unit is responsible for all events inside the computer. Okay, it controls all internal and external device,
परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन फॉर ऑल दी calculation for internal and external devices. The CPU is the device that interprets and execute instruction. Now student, CPU ही वो हमारा डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। ओके, अबाउट इनपुट। लेट्स सी अबाउट आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइस द डिवाइस विच प्रोड्यूस एन आउटपुट और रिजल्ट, जैसे कि हमारा मॉनिटर, ओके, जो कि हमको सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, दीज आर दी आर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरेज डिवाइस। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस हियर। वन इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज secondary memory, it is called secondary memory, it is called permanent memory also. Okay, in a primary memory there are two type of memory comes, first is RAM, random access memory, ठीक है, and second one is ROM, read only memory. Okay, so primary memory, why we call it primary memory? Once the computer start, this memory comes into the picture first, that is why it is called primary memory. After storing the result in a primary memory, if you want to store the data permanently, so you use secondary memory. जैसे कि यहाँ पर हमारे secondary memory कौन कौन सी है? पहला secondary memory हमारे पास है, वो है hard disk, okay, which store your data permanently. Okay, second जो हमारा है वो है ऑप्टिकल डिस्क, को CD ड्राइव बोलते हैं, CD डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क को बोलते हैं। थर्ड हमारा पेन ड्राइव हो गया, जिप डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है, दीज आर द सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विच स्टोर आवर डेटा परमानेंटली। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। नाउ पेरिफेरल डिवाइसेस आर डिवाइसेस विच यूज फॉर एक्स्ट्रा यूजेस और फॉर एक्स्ट्रा वर्क, जैसे कि यहाँ पे मॉडेम, ठीक है, मॉडेम हमारा पेरिफेरल डिवाइस हो गया, स्विचेस, हब हमारे क्या हो गए, पेरिफेरल डिवाइस हो गया, राउटर, ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे नेटवर्क डिवाइस ऑल्सो, हमारे क्या नेटवर्क डिवाइस भी हैं, ठीक है, स्विचेस हो गए, गेट्स हो गए, मॉडेम हो गया, हब हो गया, नाउ टीवी ट्यूनर कार्ड, दीज आर दी कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, सो लेट्स सी द अनदर hardware component, or these hardware are the internal component because it is inside the CPU cabinet, ठीक है, CPU cabinet के अंदर ये सारे हमारे component होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं internal component. Okay student, now let's see the first thing is the motherboard, right, is the system board also, ठीक है, all the components which used in computer system is connected in the motherboard. Okay, तो ये आपका सिस्टम बोर्ड, वो सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में मोबो भी कहते हैं, मोबो भी कहा जाता है, MOBO। फिर सीमॉस बैटरी, ठीक है, सीमॉस बैटरी यहाँ पर हमारा क्या है, जो कि हमारे कंप्यूटर के क्लॉक चिप को प्रोवाइड करता है एनर्जी, ताकि हमारा कंप्यूटर हमारे डेट एंड टाइम को हमेशा अपडेट करके रखे, ठीक है। नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि हेल्प करता है दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई को बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, AC to DC। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन स्लॉट, अगर हमें एक्सटेंड करना है कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को तो हम एक्सपेंशन स्लॉट का यूज़ करते हैं। कूलिंग फैन, जो कि हमारे CPU को कूल करने के लिए या कंप्यूटर के सर्किट्स को कूल करने के लिए कूलिंग फैन का यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड, जब भी हम, आप जानते हो जब भी आप गेम खेलते हो तो वहाँ पर हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है और वहाँ पर ग्राफिक्स के लिए हमें ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करना होता है। मेमोरी स्लॉट्स, जो कि हमारे रैम के लिए मेमोरी स्लॉट्स होती हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी स्लॉट्स। ओके, सो दीज आर अबाउट द इंटरनल component. Okay students, so let's talk about next thing about software. Now what about the software? Software are simply are the computer program. Software क्या होते हैं? Simply computer program होते हैं. The instruction given to the computer in the form of program is called software. Simple. These are definition. ठीक है, you have to note it down in your classwork book or classwork copy also. So software is a set of program which are used for different
पर्पस, ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दिस इज अ लॉजिकल थिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑल द प्रोग्राम यूज इन कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है सॉफ्टवेयर की, जिसको भी आप यूज कर सकते हैं फॉर गिवन इन योर आंसर। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक सिस्टम के लिए जनरेट किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज एक्सपी, विस्टा, विंडोज 10, ओके, विंडोज 8, विंडोज 7, so these are the operating system, okay, which operate your computer system, okay। now utility software like windows explorer जो utilities हैं, ठीक है, इसकी सहायता से हम बहुत सारी यूटिलिटी यूज करते हैं, जैसे विंडोज एक्सप्लोरर है जो फाइल फोल्डर मैनेजमेंट का काम करते हैं, फाइल क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर डिलीट करना, विंडोज मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस यूटिलिटी, डिस्क फ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, backup, these are the some utility software, okay। so let's come on the application। now application are the यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो यूजर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस पैकेज, ठीक है, जैसे कि हमें कोई एमएस ऑफिस पैकेज का यूज हमें ऑफिस वर्क के लिए यूज, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट बनाना होता है, एक्सेल शीट बनानी होती है, टैबलर फॉर्मेट में हमें कोई डेटा प्रिंट करना है, या पावर पॉइंट बनाना है, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हमारे पास एमएस एक्सेस हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ अगर हमें बैंक में देखते हैं तो बैंकों में जो बैंकर्स यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बैंकिंग के लिए। उससे हमारे रिजर्वेशंस के लिए, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जो वहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ होता है वो हमारा अलग कंप्यूटर होता है, अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सो हमारे यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड हमारा है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, विच हेल्प अस टू मेक प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, सिंपल, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज होता है तो टू राइट एनीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक उस वजह से हिंदी लैंग्वेज भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, विच हेल्प अस टू राइट प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दो तरह की लैंग्वेज है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाई सिस्टम, अंडरस्टैंड बाई सिस्टम, सिस्टम ही उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। जैसे कि उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, दिस लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाई सीपीयू, यानी सीपीयू के थ्रू जो लैंग्वेज लिखा गया है या कोड लिखा गया है उसको सीपीयू के थ्रू जो कोड एग्जीक्यूट होता है, अंडरस्टैंड होता है, उसको बोलते हैं हमारा मशीन लैंग्वेज, ठीक है। उस तरह से हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाई यूजर, ठीक है, जो उसको यूजर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हम लोग जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और वो हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है और मशीन लेवल लैंग्वेज बनता है। देन मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कौन करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है और देन उसको कन्वर्ट करता है उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में। नाउ उसके बाद हमें क्या देखना है, असेंबलर क्या होता है, इज नीडेड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज नीडेड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ओके। यहाँ पे एक डायग्राम जो आपको बता रहा है कि हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये होते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज हमें देखो, कोबॉल है, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान है, फॉर्मूला ट्रांजेक्शन है, ठीक है, बेसिक है, बेसिक बिगिनर्स फॉर ऑल पर्पस इंस्ट्रक्शन कोड, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ठीक है, डॉट, दीज आर द सम high level programming language, okay student। so I hope you understand this basic thing। in the next video we will understand types of computer, okay। till then goodbye student, thank you for watching it।